Hello everyone. I hope you're all good and this video finds you in best of your health. Uh, we are starting a new series and the very first episode of In Conversation with Ritu. And today we have a very eminent personality, one of my favorites. She can be described as a ray of hope, a very elegant, soft-spoken doctor that I have come across. Ray of hope precisely for those couples who wants to start their family. लेकिन somehow कुछ छोटा मोटा अड़चन ऐसा problem, then who to consult? The person that I really trust and I would suggest, Dr. Tanu Batra. Welcome very much, ma'am. Welcome. Hello, Ritu. Thanks a lot for your kind words. It really made my day. And I hope you're keeping well. Yes, I am. Yes, I am, ma'am. Thank you very much. So, before we start, let me give a little introduction of ma'am. Ma'am is currently working as center head of IVF, Indra IVF Center in Vaishali Nagar. And she has conducted over 2,000 IVFs and IUIs and has given tremendously positive results. So, ma'am, if you would really like to describe a little, kaisa raha abhi tak ka journey? How was it? Yeah, thank you, Ritu. Presently, I'm working with Indra IVF. And let me tell you that I joined Indra IVF in 2015. So that's a long journey. It's almost been 6 years. And during this 6 years, I've come across various couples, many stories, and it gives me pleasure to tell you that we've got a very good success rate. We do IVF and IUI. All these are ART techniques, which has helped a lot many infertile couples to conceive their dreams. And here I would also tell one thing that we've come across many patients who have various myths associated with IVF and who were in fact aware of the success rate of the IVF. But then after going through the technique, they were really happy to get the results because people come with many years of long married life, suffering through those painful years. But to be very honest, this technique is a miraculous technique. And so are you. And why I'm saying this is, uh, I went to see ma'am with a friend, or it was a really difficult time for that friend, और हमें लग रहा था कि because she was a little low, and I can understand her condition very well. जब मैम के पास हम जैसे ही पहुंचे, and then the way you talked, it was like half of the problem solved. So it was really nice of you, with such kind words you deal with patients. It's really commendable. और मैम आपको कितने, how many years has it been that you have been into women's health? Sorry? आप कितने सालों से you are associated with women health in this regard? See, Ritu, actually, it's been more than 10 years. I've been into gynecology field. Initially, I was into obstetric practice, but then since past 8 years, I've switched on to infertility practice. So during these 8 years, with experience, I've learned a lot, corrected by mistakes also. And but these 8 years have been very much fulfilling and satisfying. And जैसे आपने बोला अभी हमारे हाँ जी, पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनके शादी को किसी के 5 साल 10 साल 15 साल हो गए हैं तो वो वैसे ही बहुत एगनी में रहते हैं तो हम्म, उनसे अगर हम वो इतनी जगह डॉक्टर्स के पास कहीं कहीं कोई कोई अलग अलग ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं कोई होम्योपैथिक कोई आयुर्वेदिक कोई बाबाओं के पास जा रहे होते हैं पर जब वो हमारे पास आते हैं तो वी ट्राई टू काउंसिल देम एंड सूद देम so that उनके जो भी doubts है वो हम clear कर सके and then they can opt for the right treatment and go ahead. और आपकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से यू आर द राइट स्पीकर फॉर दिस एपिसोड टुडे. आज हम बात करेंगे कोविड एंड विमेन हेल्थ के बारे में. कोविड के ड्यूरेशन में जो प्रायोरिटी पॉपुलेशन था, पहले 45 अप और उसके बाद 18 अप, बट कहीं ना कहीं हमने ऐसा देखा कि प्रेग्नेंट विमेन
or lactating women, they were not highlighted. And I wonder why. So, ma'am, why do you think this has happened? कि बाहर जब pregnancy के time पे the ladies are being vaccinated. Why do you think this has happened in India कि अभी तक हम pregnancy में women को vaccinate नहीं कर रहे हैं COVID के लिए? Actually, Ritu, I think that जब ये vaccination का process start हुआ, तो they have started in a phase-wise trial. तो उन्होंने सबसे पहले जो importance दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो उन्होंने हमारे सीनियर सिटीजन्स को दी. तो उस टाइम 45 years and above जो सीनियर सिटीजन्स थे, उनके लिए वैक्सीनेशन चालू किया गया. But slowly after covering that, they have switched on to people between 18 to 45 years. और इसमें हाँ बिल्कुल pregnant patients are not covered, but I think pregnant patients भी cover होने चाहिए. But सबसे अच्छी बात ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैक्टेटिंग विमेन को इंक्लूड करा है. अब कि प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, मैं इसके स्ट्रॉन्ग फेवर में हूँ कि प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन होना चाहिए. एंड प्रोबेबली क्या पता कुछ समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वैक्सीनेशन को भी चालू कर दे. इसका एक रीजन ये है कि जो प्रेगनेंसी कंडीशन होती है, ये एक बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है. आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में जो मदर की डिमांड्स हैं, जो मदर के जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, उसमें फीटस के कारण जो भी डिमांड्स है वो बढ़ जाती हैं. जैसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, लंग कैपेसिटी मदर की रिड्यूस हो जाती है. और उसमें एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी इज अ थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशन. थ्रोम्बो एम्बोलिक मतलब खून में थक्का जमना, क्लॉटिंग होना. तो ये भी टेंडेंसी थोड़ी प्रेगनेंसी में बढ़ी हुई होती है. बट जैसे कि अभी हमने इस कोविड के सेकेंड वेव में देखा कि देयर हैव बीन मेनी प्रेग्नेंट पेशेंट्स हु हैव गॉट इन्फेक्टेड, और ये इन्फेक्शन काफी सिवियर था. तो आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी इज ऑल्सो अ हाई रिस्क फॉर सिवियर कोविड इन्फेक्शन. तो इस चीज को नजर में रखते हुए कई कंट्रीज में, जैसे यूएस में आपने जो बताया, यूएस में वैक्सीनेशन होता है, प्रेगनेंसी में दिया जाता है. और इसके लिए ऐसा नहीं है कि उन्हें वेट करना है कि हाँ भाई पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल जाए, पहले 3 महीने निकल जाए और उसके बाद वैक्सीनेशन देंगे हम. जैसे कि हम इंडिया में करते हैं कि हाँ टेटनस का वैक्सीनेशन पहले 3 महीने के बाद, या इन्फ्लुएंजा का भी छठे सातवें. वो कुछ हद तक ठीक है, बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखते हुए, जबकि कोविड इतना हो रहा है और इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, मेरी प्रैक्टिस में भी आई हैव सीन many IVF pregnant patient who got infected and that infection was very severe. तो मुझे लगता है कि हमें वैक्सीनेशन जरूर से चालू करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज में. और ये भी नहीं है कि हम वेट करें कि हाँ पहले 3 महीने निकल जाएं उसके बाद वैक्सीनेशन करें, क्योंकि हमारा लक कितना अच्छा है वी नेवर नो. तो इट इज ऑलवेज गुड कि जब भी आपको वैक्सीनेशन का चांस मिले, आपका स्लॉट आए, तो वन शुड गेट the vaccination done. This is what I think. So this can be a takeaway advice from this very episode. जब भी government of India vaccination for pregnant women start करेगी, so as per the studies that have been conducted so far in various other countries, आप प्रेगनेंसी में कभी भी वैक्सीनेट करवा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि 3 महीने निकलने के बाद या फिर लास्ट के 3 महीने में. देयर इज नो पर्टिकुलर सेट रूल लाइक दैट एज येट. जैसे यूएस में भी जो फाइजर वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, दैट इज गिवन इन एनी पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, एनी टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी. इट इज नॉट दैट दे आर वेटिंग कि हाँ फर्स्ट 3 months निकल जाए उसके बाद लगाएंगे, बिकॉज इवन दोज 3 months आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट. डॉक्टर तानू, अभी दो लैक्टेटिंग विमेन में परमिसिबल है वैक्सीन लगवाना, लेकिन फिर भी मिथ रहा है बहुत टाइम तक. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट? लैक्टेटिंग विमेन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनमें इज देयर अ पर्टिकुलर टाइम कि तब लगवाना चाहिए बच्चा 3 महीने का है तब नहीं, या 1 साल का हो जाए तब, या व्हाट आर योर सजेशंस ऑन दैट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैक्टेटिंग वुमेन के लिए वैक्सीनेशन चालू कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. तो इसमें ऐसे कोई मिथ्स नहीं रहने चाहिए कि बच्चा जब इतना बड़ा हो जाए तब चालू करा जाए या इतना हो तब करा जाए.
बिकॉज अगर हम लैक्टेटिंग विमेन को वैक्सीनेट करेंगे तो इससे इनडायरेक्टली बच्चे को भी फायदा है। वो कैसे? इससे जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। दो तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीएम और आईजीजी। और देखा गया है कि ये एंटीबॉडीज पास होती हैं ब्रेस्ट मिल्क से, और बच्चे में भी ये एक तरह की प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज पास हो जाती हैं, और बच्चे को भी आगे कोविड इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी मिथ्स नहीं रखने। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने इंडिया में 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। आप जी, लोगों को सभी को पता है कि एक तो अपने एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, और रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन है। तो राइट। इन वैक्सीन में कोई भी लाइव एटेन्यूएटेड वायरसेस नहीं है। अपने इनमें किल्ड वायरस और एडेनो वेक्टर है जो कि हार्मलेस है। तो हम इन वैक्सीन को लेकर वी कैन बी वेरी मच अश्योर्ड कि इससे बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा, और जो वैक्सीन लेने वाले हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वैक्सीनेशन के फायदे बहुत हैं। आज एट प्रेजेंट कई लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर भी मिथ्स है कि वैक्सीनेशन से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं और ऐसा। वो ये है कि इससे अगर बाद में किसी को कोई कोविड इन्फेक्शन हुआ भी है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर कोई वैक्सीनेटेड है तो किसी ने इन्फेक्शन कैच करा है तो दोज इन्फेक्शन आर वेरी माइल्ड, उसमें बहुत कम सिम्टम्स रहते हैं, और ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। तो वैक्सीनेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो रिस्क से बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज जो डेटा हमें बताती है, इसमें आप कह सकते हैं जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें हार्डली 0.02% कुछ भी हाई रिस्क देखा गया है जिसमें कोई मोर्टालिटी ऐसे, तो 0.02% इज वेरी वेरी लेस। वैसे ही कोवैक्सीन में भी इट इज जस्ट 0.03%। तो ऐसा घबराना कि कुछ हो जाएगा और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वैक्सीनेशन के बाद, तो ये मिथ्स बिल्कुल निकाल दीजिए अपने दिमाग से। ये जरूर है कि अगर वैक्सीनेशन लगाया है तो आपको उसके कुछ एक आध दिन तक कुछ थोड़े बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स रह सकते हैं, जैसे बुखार आना या बॉडी एक होना, किसी को हेडेक होता है, किसी को डायरिया होता है, किसी को जॉइंट पेन होता है। पर बिलीव मी, ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए है। इन 1-2 दिन के दौरान आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, अपने आप को अच्छा फ्लूइड्स लीजिए, अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए। बट इन 2 दिनों में कई लोग घबरा जाते हैं, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन लगाया है आपको उसमें कोई भी लाइव अटेन्युएटेड वायरस नहीं है। तो वैक्सीन से आपको इन्फेक्शन हो ऐसा बिल्कुल नहीं। सो डॉक्टर तनु, लैक्टेटिंग वुमेन अगर वैक्सीनेट करवाती है अपने आप को, तो द एंटीबॉडीज पास ऑन टू द चाइल्ड एज वेल वाया यस, ब्रेस्ट। एंड दिस इज यस, सच अ फैबुलस थिंग, आप एक वैक्सीन में 2 लोगों को एक्चुअली एंटीबॉडीज दे रहे हैं। बिल्कुल इज बिल्कुल। दिस द सेम विद प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल? यस यस, जैसे हम प्रेगनेंसी में हम डीपीटी देते हैं, हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं, तो उससे बच्चे में भी एंटीबॉडीज जाती है, विच इज वेरी हेल्पफुल एंड प्रोटेक्टिव। Great. So, Dr. Tanu, is there any particular time, जैसे if a lady is on her periods, if she is chumming, तो तब avoid करना है, या फिर ऐसा कुछ है क्राइटेरिया कि एक women को तब जाके वैक्सीनेट करवाना चाहिए और तब नहीं करवाना चाहिए? नहीं, ये मुझे पता है कई लोगों के दिमाग में मिथ्स है, और हम लोगों ने अभी व्हाट्सएप पे भी खूब सारे मैसेजेस देखे थे जिसमें मेंशन था कि नहीं, पीरियड्स हो रहे हैं तो आप नहीं जाएं, ऐसा है तो नहीं करें। तो ये बिल्कुल गलत बात है। पीरियड्स के दौरान आप बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं, लैक्टेशन के दौरान भी आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। बट जो भी इनफैक्ट वैक्सीन उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, जो हाई रिस्क है, उनके लिए भी बहुत यूजफुल वैक्सीन है। बट वो वैक्सीनेशन अंडर द सर्विलेंस ऑफ जो भी उनके डॉक्टर है उनके सर्विलेंस में ही वो वैक्सीन लगाएं। एंड जस्ट मेक श्योर कि आपकी शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल हो, आप मेडिसिन ले रहे हो और नॉर्मल हो। Alright. अच्छा, एक चीज और जी, मैं डॉक्टर ऋतु आपको बताना चाहूंगी कि कई बार हमने ऐसा देखा है, इनफैक्ट मेरे पास भी फ्रेंड्स के मैसेजेस आते हैं
कि नहीं हमें कोविशील्ड नहीं, हमें कोवैक्सीन लगानी है, कोवैक्सीन नहीं कोविशील्ड लगानी है, तो प्लीज अभी इन सब चॉइसेस को छोड़ दीजिए। बिकॉज एट प्रेजेंट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज आपको जो भी वैक्सीन मिले आप उसे तुरंत लगवाएं, है ना। बिकॉज इन्फेक्शन वेट नहीं करेगा कि आपने कोविशील्ड लगाई या कोवैक्सीन लगाई। तो द नीड ऑफ द आवर इज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड as early as possible, राइट। because both the vaccines are equally efficacious. दोनों का जो efficiency है वो 70 to 80% तक है। सो जो भी अवेलेबल हो आप जल्दी से जल्दी उसी को बिल्कुल। वैक्सीन करवाइए उसी से अपने आप को। अच्छा डॉक्टर दानू, इफ वी टॉक अबाउट कपल हु आर प्लानिंग देयर फैमिली, इट हैज बीन अ लॉन्ग स्पैन जब से कोविड रहा है, ओवर अ ईयर नाउ, तो what is your advice to those who want to plan their family? Is this the right time? Or what about it? अगर wait करना है तो और कितना time? This might be a question popping up in their mind कि अगर अभी if this is unsafe time, then how long should they wait? What about that? What are your suggestions on that? या आपका क्वेश्चन बहुत अप्रोप्रिएट है ऋतु, बिकॉज वी कम अक्रॉस मेनी इनफर्टाइल केसेस। तो कई पेशेंट्स कहते हैं मैडम कितना इंतजार करेंगे, अब तो कोविड 1.5 साल का हो गया, वी बीन वेटिंग वेटिंग और अभी तक नहीं वो हुआ। तो उनकी बात भी सही है, पर देखिए अब क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो क्यों ना हम वैक्सीनेशन लगाकर आगे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए बढ़े। जहाँ इतने साल निकल गए हैं तो वहां पे हम 2 डोज वैक्सीनेशन की लगा लें और फिर बढ़े। वैसे इसमें दो व्यूज ऑफ थॉट है। जो अमेरिकन सोसाइटी है वो ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब यू कैन गो फॉर फैमिली प्लानिंग, आप कंसेप्शन के लिए बढ़ सकते हैं। इवन जब आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके टेस्ट नहीं करना है कि आपको इन्फेक्शन तो नहीं है। और अगर किसी को मतलब वैक्सीन लगता है और उनको बाद में पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो डरने की बात भी नहीं है, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड इट कि इट इज नॉट टेराटोजेनिक, तो डरने की बात नहीं है। और जबकि यूरोपियन गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप 2 डोजेस लगाइए वैक्सीनेशन की और 2 सेकेंड डोज के आप कुछ समय तक वेट करिए, वेट फॉर फ्यू डेज। और अगर हम बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं तो एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स तक वेट करें for after taking the second dose, and then you go for any kind of fertility treatment. मेरा भी यही मानना है कि take both of your doses, wait for some time and then we go for this. ये जो पैंडेमिक का पीक पीरियड चल रहा है इस पीरियड को हम लोग निकाल दें। So the thing is कि those who are planning, they should plan it likewise कि second dose के 6 to 8 weeks के बाद they should plan their family. And in case if a lady has conceived and just got vaccinated or about to get vaccinated, तो उस condition में panic करने की जरूरत नहीं है. It's good to go, right, Yeah. doctor? Yes, yes. Now coming on to the question, ये जो थर्ड वेव आने वाला है, इफ यू कैन सजेस्ट अ लिटिल, आप भी अभी बाहर जा रहे हैं, यू हैव अ किड एट होम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हाउस होल्ड एज वेल, यू हैव टू डील विद पेशेंट्स एज वेल, व्हाट आर योर जनरल कोविड सजेशंस? क्योंकि थर्ड वेव सुन के दैट इट इज गोइंग टू अफेक्ट किड्स एंड बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ है। सो मैम आप कैसे, हाउ डू यू मैनेज योर वर्क, you're going out and still coming back to your kid, how are you managing that? See here, Ritu, I would say one thing, that COVID is a war and we all are like warriors. तो हमारे पास है weapons, arms and ammunition सबके पास है, बट सिर्फ जरूरत है कि हम अपने weapons को अच्छी तरह से बिल्कुल सजगता के साथ उन्हें यूज करें, उनका इस्तेमाल करें। We be very careful. और यही इट्स द नीड ऑफ द आवर कि हम अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करें। जैसे कि आपने कहा थर्ड वेव आने वाला है, तो ये हम सबको पता है कि जब फर्स्ट वेव आया था इट वाज वेरी माइल्ड, सेकंड वेव आया तो उसमें हमने बहुत सारी कैलामिटीज देखी हैं, बहुत सारे हमारे नियर एंड डियर वंस के बारे में सुना है, विच इज वेरी वेरी सैड। तो नाउ दिस इज अ लेसन फॉर अस, सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द थर्ड वेव। और वेदर द थर्ड वेव इज स्ट्रॉन्ग और इट इज माइल्ड, वो उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। At present, what thing we have to concentrate is we have to build our immunity and don't lose your guards.
इम्यूनिटी की बात करें तो आप यू टेक वेल बैलेंस्ड डाइट, एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीजिए, जंक फूड अवॉइड करें, बच्चों को भी जंक फूड नहीं दें, गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन के लिए भी जाइए. मेडिटेशन इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट because it will reduce of the stress that you're having about the future things that are going to happen. Right, एंड right. साथ में आप अपने एंटीऑक्सीडेंट्स मल्टीविटामिन लीजिए. बट इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि किसी भी मल्टीविटामिन की ओवरडोज भी नहीं ले. विटामिन Right, सी इज right. वेरी गुड. वो आपको जो हमारे डेली के जो हम खान पान में यूज करते हैं, जैसे लेमन हो गया, गूसबेरी, आंवला हो गया, ये सारे रिच सोर्सेज हैं. तो वो सब चीजों को आप कंज्यूम करें और साथ में आप एक्सरसाइजेस भी करें, विच कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल. I believe same goes for all the women as well. सारी Yes. जो महिलाएं हैं घर में, they make sure to keep everybody healthy. आप सबके लिए खाना बनाते हैं, आप सबके लिए साफ सफाई करते हैं, and at the very same time you are the backbone, so you got to take care of yourself as well. ये सारी चीजें, meditation, exercise, healthy diet, stress free रहना, this is all for you as well. So my heartfelt सबसे request to all the इम्पोर्टेंट, women. yeah, जी. and सबसे इम्पोर्टेंट, we have to be very positive. We have to be very hopeful and have a positive attitude. कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें होपफुल रहना है कि things will improve again. Right, ma'am. So I am done with all my questions. So far, is there anything you would like to add, ma'am? इसमें मैं बस यही बताना चाहूंगी कि जैसे हमारी दोनों वैक्सीन जो हम यूज कर रहे हैं, इनकी 2 डोजेज हैं. इनिशियली जो कोविशील्ड में जो गैप था बिटवीन सेकेंड डोज, इट वाज अराउंड 6 to 8 weeks. बट अब ये जो गैप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 12 weeks to 16 weeks. जी. दैट इज 3 to 4 months टाइम. इसका भी एक रीजन है, वो ये है कि फर्स्ट डोज के बाद ही अप्रोक्सीमेटली 70% तक इम्यूनाइजेशन, मतलब आपको इफेक्टिवनेस हो जाती है. योर बॉडी गेट्स इम्यून एंड यू गेट स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज. तो उस टाइम पीरियड को हम विन कर सकते हैं. और सेकेंड डोज लगा के तो हमारा एक्सटेंडेड टाइम पीरियड हो जाता है टिल वी आर प्रोटेक्टेड. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. तो अगर ये टाइम पीरियड है, आप इस टाइम पीरियड के बाद अपना सेकेंड डोज जरूर लगाएं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सपोज आपने अगर कोविशील्ड वैक्सीन लिया है, तो फर्स्ट डोज आपने कोविशील्ड लिए, तो सेकेंड डोज गो फॉर कोविशील्ड. प्लीज डोंट Right. चेंज द ब्रांड ऑफ द वैक्सीन. डोंट डू दैट. आपने पहले कोविशील्ड लिया, सेकेंड कोवैक्सीन लगा रहे हैं. बिकॉज जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो यही है कि आप सेम ब्रांड वाली वैक्सीन ही लीजिए, नॉट टू चेंज द टाइप ऑफ द वैक्सीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे गिव यू अ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट कि आपने इस को अपने आप को वैक्सीनेट किया है, सो दैट पीपल डोंट फॉरगेट कि कौन सा वैक्सीनेशन था और कब था. सो आई होप this video is going to be a little help to all those who have queries, all the women, all those who want to plan their family, those who are breastfeeding, those who want to conceive. I hope this video helps. Dr. Tanu, it was lovely talking to you. और हमारे व्यूअर्स को अगर कोई भी क्वेरी होगी, they can drop in a text and we'll get back to you with another episode very soon. Dr. Tanu, thank you very much for sparing our time and talking with us. Thank you. Thanks a lot, Dr. Ritu. It was nice talking to you. Had a lovely Alright. morning. Yeah. Thank you. Take care, ma'am. Bye bye.